Hello, and welcome to another episode of InnoHealth Magazine podcast. I'm your host, Dr. Soumya Singh. In today's episode, we will be learning about the invisible links of environment and health. And to help us understand that, we have with us a very special guest, Dr. Tanu Jindal, with us. She is Group Additional Pro Vice Chancellor, R&D and Director, MIT Institute of Environmental Toxicology and Safety Management, MIT Institute of Water Technology and Management, MIT Center for Antarctic Research and Studies, MIT Institute of Oceanography and Atmospheric Science. So welcome to the today's episode, ma'am. How are you? I am good. Thank you so much for such generous introduction. So how was your day? Like usually your day, how it goes? It goes, right from the morning when I get up, and I do dhyan in the morning, and the mind starts working what is for the day. So, generally I plan for my day during that dhyan, and the beauty of doing dhyan and pranayam is that that I get new ideas also. What can really help me in my mission for environmental health protection. So my day starts with that. Then I go for a walk in the morning outside in green grass, come back, do some yoga and get ready and come back to the office. Come to the office, and during all this, generally I make my plan for the whole day, and then I start with something innovative, something new project or new conference or seminar or what has to be done in the lab. So that's how my whole day goes, and then making connections with the people, inviting delegations, and how we can increase networking, public-private partnerships, and also then my research scholars come, and then I discuss generally with them, what is for the day, what they have done, how they need my advice. Then comes the publications. Then I focus on some of my publications which are in continuation, and something has to be done on the draft or some revision needs to be done. So all those things. Go back, and then that's my time with the family. Time. Yes. So since you mentioned about walking in the morning air you breathe, so there are pollutants which are often overlooked. So we see there's a smog is there, then visible, we talk about PM 2.5, then there's a plastics. So what as per your opinion, what pollutants that are being overlooked by the government or by the environmentalist? Yeah, in fact, the pollutants, we are just focusing currently on PM 2.5 and 10. But we must not forget the toxic gases. For example, carbon monoxide, carbon dioxide, there are also SOx are there, NOx is there, then ozone is there, and also there are many toxic gases or toxic particles which get attached to this PM 2.10 and 10. So we are just in a very primitive stage of reporting the air pollutants. Yes. So air pollutants are the complex mixtures of these chemicals. Okay. Have you ever observed when you go to a cafeteria, there is a particular coffee smell comes, yes, right? Yes. And when you go towards a drain, a rotten egg smell comes. Yes. So what is this? These are the toxic gases. Okay. So our work specially focused on the open drains of Delhi. The open drains of Delhi. I have not seen in any country the sewage waste being carried out through these open drains and then going into the Yamuna river. Yes. We are in a bullock cart stage of managing our waste. So this waste which we are carrying through our open drains, there are 16 major drains in Delhi. Okay. And they are all bringing and merging waste into 9 drains, right? And these are falling into the Yamuna river. So not only polluting the Yamuna river, but also these drains are becoming the site of leaching ponds into the groundwater. So we have done a project with Ministry of Earth Sciences wherein we have shown what are the contaminants going to the groundwater, not only to the Yamuna river. Okay. And these drains, they create foul smell. So
H2S, you know, there are many toxic gases. In fact, near the drains, even ACs get rotten. They get corroded. Appliances get corroded. Yeah. So you can imagine if they can corrode the appliances, how much they are impacting our health. Yes. So first of all, we need to treat our waste at its generation point, where the main sewer is there. So I have proposed decentralization of STP plants. No, let us take care of our own waste. RWA plus government plus some corporate initiatives can come together, and let us decentralize the STP plants near the main sewer. And these decentralized STP plants can treat the waste, give it in the form of manure to the residents, and the wastewater, treated wastewater, can be given to the community parks. So you know, such model can only work to solve the huge problem of, you know, sewage waste in Delhi. No, we all have to come. If electricity is not there, I'm sure you all must be having inverters, Yes. generators in your home. Yes. Right? Yeah. So when the whole system of treating sewage waste is not working, we have sewage treatment plants, but they are not working to their optimum efficiency. Maybe lack of, you know, electricity. So I have proposed, let us come together, let us take responsibility of treating our own waste. Yes. Yeah? And then help the country, nation, or any state to, you know, get over this problem. And once you stop pouring in Yamuna river, right, then we can treat it. No, first if we keep treating it and we keep pouring in, Yamuna will never get clean. Simply just like, you know, removing the plastic, the weeds is not sufficient. Not sufficient. First you have to stop Yes. the entry point of the waste, right, and then start cleaning operations, and then the new flow of Yamuna from the Himalayas will itself clean the river. So I think this is a strategy one has to adopt. Similarly for the Ganga, we can adopt the same strategies. The industries which are putting in waste in Ganga and Yamuna, Yes. they should check, they should put industry effluent treatment plants, zero waste, you know, policy. Yes. And then they should, you know, release their discharge. So once we stop sewage waste, we stop solid waste, you know, plastic and other bottles which has to be poured in, you know. So or any other, you know, water, spoiled water, or for that matter, you know, many people are washing clothes and other things, you know, near the Yamuna. That also need to be stopped. And paper waste, metal waste, we have to stop throwing it in Yamuna river. Plastic bags, you know, the solid waste, sewage waste, and industrial waste. If we stop pouring in through the proper, you know, methods which I told, STP, ETP plants, and awareness, and then only that ghat cleaning and Swachh Bharat mission will be successful. Because if we keep cleaning and keep pouring in, it is not going to help. Another mega campaign, you know, which I say, it is good to contribute physically, you know, okay, you do jhadu, you do ghat cleaning, but how about the authorities? I think letter should go in bulk to authorities, to the concerned officer in charge in any authority who is responsible for solid waste management, who is responsible for sewage waste management, what he is doing. They should be awakened. So the proper letters from thousands of students and general public should go to them that such and such case is happening. Yes. Please come and help us. Like the similar thing happened in Hyderabad. People protested there, and the Supreme Court intervened. And thankfully, that no deforestation for whatever IT park purpose has been stopped. A similar action we can take for this. For the solid waste management. Because if you write to the, supposedly there are, you know, holes in the roads, then somebody is burning leaves and all. Yes. So what these authorities are doing? So I have proposed a model of environmental policing. There is traffic police. Why not to have environmental police? Yes. There is no simple, this police
they should take care of hardcore criminals or other cases, or they will do environmental policing. So I have proposed on contractual basis in taking one city or one colony or small area patch, let us train some contractual people for environmental policing, put them into the action, and then with the help of many NGOs we can first start cleaning. Yes. And then put fine to the people who are not following the norms, who are again contaminating the rivers, or many people are throwing their puja things and Yes. many things into the Yamuna river in Yes. the polythene bags, in Yes. spite of so many this. Why not we employ an environmental police officer there? Right? Let us start doing it on contractual basis. Let us train them, and if the proposal is successful, we can employ the same model in other cities as well. Yeah, this will definitely be a two thing. Like it will aware the public plus generate employment, and also keeping the environment clean. That's definitely. But don't you think like applying this model of thing, like people they are so corrupted, like they give extra money, अच्छा please sir हमको जाने दीजिए, आप extra ले लीजिए. So do you think that corruption will not enter this section as well? Yeah, but a senior police officer can be placed over them, so there will be hierarchy of people. Okay. For example, if you say that traffic police should be removed because there is such corruption, Yeah. it's just not possible. Yeah. No? So corruption is there, but we have to really make checkpoints for that. Okay. So with that, I think system can really work. Eventually it is. So I've recently learned read somewhere in the news because air pollution is linked to heart disease. So there are various other pollutant which is related to certain chronic illness. So are we having enough data, or are we doing enough to make have enough data for this chronic illness linkage, so that we can change the policy, or we can do certain changes? Because since there is for cancer, there is mentioned if you smoke you will have cancer, so if you breathe in this kind of air you will have this disease. So are we doing something in this area, data? And many researches have proved. For example, recently we did a research on impact of air pollution on cognitive behavior for asthmatic patients, and we could clearly see there was response, there was impact on the cognitive behavior of the people who are in the highly polluted city. We took Gorakhpur as less polluted area, Okay. and Delhi state as a more polluted area, and then we took asthmatic patients, and then we found some questionnaire and some cognitive behavior patterns are there, and we could see the difference. See, if you're going out in sun, and you are tired, obviously there will be impact. Heat stress is there. Yes. Similarly, a toxic gas and an asthmatic patient, exposed to toxic gases or bad air, obviously his problem will be aggravated. Yes. Once his problem is aggravated, obviously it will impact the cognitive behavior, also senses also. Yes. You're coughing, you're sneezing, it all increases, your senses are also impacted. So similarly, when these pollutants you respire, they also go into your blood. So obviously heart disease is gonna happen more. Yes. In fact, लोग कहते हैं कि दिल्ली वालों के दिल काले हैं. बहुत डॉक्टर्स ने बोला when they operate Yes. कि तो वो ब्लैक उसके ऊपर होता है Lungs, डिपॉजिट, हाँ. है ना. Yes. और जबकि आप किसी और एरिया जैसे उत्तराखंड में जाएंगे या ऊपर हिली एरियाज जहाँ पे एयर क्लीन है, तो उनके पिंक हार्ट्स होते हैं. तो ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है ना. तो वी हैव टू रियली कम फास्ट and get rid of this problem. And इसमें एक बहुत बड़ा एक जो फैक्टर है रीसस्पेंशन ऑफ द रोड डस्ट है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो हो ही रही हैं, वेहिकुलर एमिशंस तो है ही,
सिंपली ठीक है लाइक ना? ग्रीन शेड लगाने से कोई लाइक नॉट अफेक्ट। हाँ, तो उसमें जो हो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्रीट होना चाहिए। लाइक आई हैव बीन टू लास वेगस, आई हैव बीन टू दुबई, Yes. जो पूरे डेजर्ट्स हैं जहाँ इतना डस्ट होता है, तो वहाँ क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव मेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक दैट, दे हैव नॉट लेफ्ट द स्पेस बिटवीन पेवमेंट एंड द रोड। ओके। यहाँ जो पेवमेंट और रोड के बीच में जो गैप होता है वो ही डस्ट रिसस्पेंड होती रहती है जब व्हीकुलर मूवमेंट होती है। व्हीकल से एमिशंस तो है ही, लेकिन जो रोड डस्ट रिसस्पेंड होती है तो टॉक्सिक पार्टिकल उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। जो भी व्हीकुलर एमिशन या इंडस्ट्रियल एमिशंस निकल रहे हैं, तो हमें देखना है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना है। उसमें गवर्नमेंट तो आगे आएगी ही, लेकिन हम लोगों को भी देखना है ना। अगर बेयर हमारा रोड है, हमारे पार्क में अगर ग्रास नहीं है तो ग्रास उगाएं। ग्रास नहीं उग पा रही है शेड की वजह से, तो उस पे पेबल्स रख दें कुछ, या फिर स्ट्रॉज, जो वुड स्ट्रॉज होती है वो रख दें। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा वो जरा सा भी पोर्शन बेयर नहीं छोड़ते हैं, दे पुट फाइन। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट करती है, वहाँ पे पेबल्स डालेगी या ग्रास उगाएगी या छोटे छोटे टुकड़े वुड के वो उससे कवर कर देगी। और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो लोगों को भी वही एनवायरमेंटल पुलिसिंग होती है, वो फाइन करते हैं अगर अपना गार्डन मेंटेन नहीं कर रहे आप। या आपने बैकयार्ड में सॉलिड वेस्ट डाला हुआ है, आपने अच्छे से मेंटेन नहीं करा हुआ अपना घर, या कूड़ा इधर फेंक रहे हैं, है ना। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया भी है। मैंने योगी जी आए थे हमारे एमिटी कैंपस में, तब मैंने उनको प्रोजेक्ट दिया था। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं डीएम साहब से भी मिलूं कि कैसे हम एक छोटे से स्टेट में पहले इसको हम करें। नोएडा स्टेट से शुरू करते हैं, या पीएमओ ऑफिस में मेरे प्रोजेक्ट जाए, और कहीं से तो शुरुआत करें। क्योंकि इसमें ना पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप से काम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट चाहे कि हम खाली अपनी जिम्मेदारी ले, ऐसे नहीं होगा। जब हम अपने घर में जनरेटर्स लगा सकते हैं, इन्वर्टर्स लगा सकते हैं, ये कंप्लेन तो नहीं करते लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं है, लाइट नहीं आ रही, हमने कर लिया ना सोल्यूशन, तो हमें एनवायरनमेंट के लिए भी आगे आना होगा। कहीं ना कहीं हम भी अपनी भागीदारी लें उसमें। हर चीज ना एनफोर्समेंट से नहीं होती है जी। और हम ऐसे बनाएं सिस्टम कि जैसे शाम के टाइम उठे, ठीक है, पाइप से पानी डाल दिया घर के बाहर। पहले हम लोग बचपन में करते थे, छिड़काव करते थे घर के आगे। हम लोग ये करते थे गर्मियों के दिनों में, है ना। और करें अपना, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है ना, पानी का छिड़काव करना, है कि नहीं। और छोटी छोटी चीजें हैं, काफी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के मॉडल बनाए हैं। पौचे का पानी गार्डन में डाल दिया, है ना, उसको स्प्रे कर दिया। और हमारे तो इंडिया में बहुत अच्छा सिस्टम है, रोज झाड़ू पोछा होता है। अनलाइक अब्रॉड कि हफ्ते में एक बार क्लीनिंग हो रही है। तो उस पानी को बस हमें रिसाइकल करना है। आरओ का जो वाटर है उसको हम वहाँ डाल दें, वेस्ट वाटर को, उसकी पाइप लगा के अपना ड्रिप इरिगेशन कर दें अपने गमलों में। एक छोटा सा सिस्टम बनाना है बस। एक वन टाइम खर्चा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है इसमें। तो आप देखिए पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन अपने आप ही सस्पेंड वो जो हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। एयर पोल्यूशन की तो बात यहाँ तक है। प्लस उसके बाद हमने कुछ वो भी निकाले हैं रूल्स कि अपने नाक में घी लगा लीजिए। अच्छा, है ना। तो देखिए वो ट्रैप हो जाएंगे वहीं पे। हमारे गाय का घी लगाने से मेमोरी भी अच्छी होती है। प्लस कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आंवला है, ये सब चीजें अपनी डाइट में सुबह सुबह स्मूदी पीजिए ना। चाय पीने की क्या जरूरत है ना। एक स्मूदी बनाइए आंवले की और कुछ पत्तियां तुलसी वुलसी डाल के, खीरे की, फ्रूट की स्मूदी बना के पीजिए। हमारी हल्दी उसमें डालिए, काली मिर्च डालिए, अच्छा सा ड्रिंक टेस्ट चीज़ें बना के पीजिए। तो आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये भी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छा आपने एक नुस्खा दिया। सो मेरा जो एक और सवाल जो कॉमन है, जो हर साल दिवालियों में बहुत बोला जाता है कि लाइक दिवाली के पटाखे इसीलिए बैन कर दिए जाते हैं कि उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, फिर पराली जलाई जाती है, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है दिल्ली में उस वक्त। तो क्या सच में इस वजह से होता है, या फिर जोग्राफिकल पोजिशनिंग ऑफ दिल्ली इज द वन ऑफ द कॉज ऑफ जो स्मॉग इतना थिक होता है? आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ये दिल्ली का जो एनक्लोज सर्कल है ना, और यहाँ वाटर बॉडी नहीं है ज्यादा जो एब्जॉर्ब कर ले उसको, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्लोज्ड है। वो एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉग।
वहाँ से आ रहा है और यहाँ वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने तो काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली है। देखो कहीं ना कहीं फार्मर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है। इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो एग्रीकल्चर वेस्ट को ले लेते हैं और उसके बहुत प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मैंने देखा है वो स्टार्टअप महाकुंभ में, मैंने देखा लोगों ने उसका ना वो कॉम्पैक्ट लॉग बना दिया है और इतना सस्ता मिल रहा है। वो 9 रुपए का कुछ इतना बड़ा लॉग था जो आप उसमें ब्रिक क्लीन में यूज कर सकते हैं। इजी भी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। और अपने हवन में भी मेरे को लगता है यूज कर लेते हैं। काउडंग के कुछ वो आते हैं उपले बने हुए, है ना, वो है। तो फार्मर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन स्टार्टअप्स को ज़्यादा सब्सिडाइज करा जाए उस एरिया में लगाने के लिए, ताकि उनको एक्स्ट्रा इनकम हो और पराली जलाने की नौबत ही ना आए, है ना। वो जो उनका वेस्ट है वो कंपनी वहीं की वहीं खरीद ले और वहीं उनके प्रोडक्ट्स बना ले। फॉर एग्जांपल ये जो टेबल है आप ये देखिए, ये कंप्रेस्ड उसी की है, है ना। कंप्रेस जो वेस्ट होता है एग्रीकल्चर वेस्ट, भूसे को बना के उसका वुड बनता है, कंप्रेस होके, ये उसी का ही बना हुआ है ये सारा। देखिए कितना सुंदर प्रोडक्ट बन के आया है। तो ये स्टार्टअप्स आने की जरूरत है और लोग कर भी रहे हैं। और हमें भी आगे आना है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को, मुझे आई थी प्योर टीक वुड की टेबल मेरे ऑफिस में आई थी मेरे लिए। मैंने बोला नहीं, मुझे ये अच्छी लग रही है, मेरे को यही टेबल चाहिए, क्योंकि ये रिसाइकल्ड उससे बनी हुई है ना। तो लोगों को भी, जब ये मार्केट जो कस्टमर ड्रिवन होती है, जब लोग उसको खरीदेंगे तो प्योर टिम्बर और इसके नहीं आएंगे ना प्रोडक्ट्स, वो जंगल भी नहीं काटेंगे हमारे, है ना। तो यही सफाइज कर जाएगा हमारी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट को। तो मेरे को लग रहा है बहुत हद तक काम हो रहा है, पर और आगे आने की जरूरत है, जिससे कि हमारा एयर पोल्यूशन। रही बात पटाखों की, थोड़ा सा तो मैंने देखा, आपने देखा हमारी दिवाली उस टाइम पे आती है जब मॉस्किटोज ब्रीड कर रहे होते हैं। देखा ना कितनी सारी गाड़ियां आती हैं जो वो स्प्रे करके जाती है ना, एंटी मॉस्किटो का। हमारी कॉलोनी तो रेगुलर आती है हर हफ्ते। तो वो कौन सा नॉन टॉक्सिक होती है? वो भी तो टॉक्सिक गैस होती है ना। जब मच्छर को मारेगी तो हमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी ना। तो दिवाली ऐसे टाइम पे होता है हमारा त्योहार कि ये सारे आपने देखा दिवाली के मच्छर की, मॉस्किटोज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो एक आध दिन के लिए ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। बस मेरा ये कि जो फायर क्रैकर्स यूज कर रहे हैं, एक तो लिमिट में हो, ठीक है ना, उसकी थोड़ी सी राशनिंग हो, है ना। और दूसरा वो ग्रीन क्रैकर्स हो। वो जो मल्टीपल कलर वाले आ रहे हैं ना, उनमें हैवी मेटल्स होते हैं। वो कलर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कोबाल्ट का अलग होता है, इसका अलग होता है। तो वो ना खरीदें, थोड़ा अपने मजे के लिए अब जलाइए। एक पब्लिक कॉमन प्लेस कर लें, हर कम्युनिटी, हर कॉलोनी RWA खुद मिल के करे। कोई एक, मैं सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, शादी में भी लोग जलाते हैं, लेकिन हर एक घर में जलाने की बजाय, जैसे होली का दहन होता है ना, पब्लिक प्लेस पे होता है कि नहीं। तो ऐसी एक पब्लिक प्लेस बना ले हर कम्युनिटी, और वहाँ पे सब एंजॉय करें। तो उसमें क्या होगा, सौहार्द भी बढ़ेगा लोगों का। पब्लिक फीस्टिंग भी करें, हर घर में बनाने की बजाय खाना वहीं पे डिनर हो, है। और सवाई, और जैसे दशहरा नहीं होता, दशहरे पे भी तो आतिशबाजी एक कॉमन प्लेस पे होती है ना। ऐसी दिवाली वाले दिन भी मेरा ये कहना है कि एक कॉमन प्लेस बना ले, तो एक कंट्रोल भी हो जाएगा, आपका त्योहार भी मन गया और मॉस्किटोज की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। वो एक आध दिन को होती है, उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाता है अपने आप पोल्यूशन। तो लिमिट कर दे और ग्रीन फायर क्रैकर्स को बस्ट करें, जिनमें ज्यादा हैवी मेटल्स ना यूज करें। सो ठीक, ये एक बात रही, बट इसमें वेस्ट भी जो बहुत जनरेट होता है। सो जैसे इंडिया, एक सर्वे के अनुसार इंडिया जनरेट्स ओवर 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट ईच ईयर, जो कि 30% ऑफ दैट जो इफेक्ट उसका 30% ही बहुत इफेक्टिवली प्रोसेस्ड होता है। सो आपके हिसाब से लेकिन शहरों को क्या रिफॉर्म्स करना चाहिए सो दैट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वो अपने वेस्ट को क्राइसिस है उसको पूरा 100% वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो क्या ऐसे चेंजेस करे कि वो पूरा 100% उसको वो कर सके, मैनेज कर सके अपने वेस्ट को? तो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन चाहिए। जैसे मेरे घर में है, सॉलिड वेस्ट और वेट वेस्ट अलग जाता है। अब वो जो सॉलिड वेस्ट है ना, उसको हम देते ही नहीं है, प्लास्टिक बेच देते हैं। एक महीने में एक बार आता है। हमारा तो इतना अच्छा सिस्टम है, घर पे आ जाता है वो कबाड़ी वाला आपके घर पे, प्लास्टिक, पेपर, मेटल सब उसको स्क्रैप वेंडर को बेच देते हैं हम। कितना अच्छा सिस्टम है। अब आपके गया ही नहीं, जो आपके पास है उसको सिर्फ वेस्ट बेच दें आप। आपको देना ही क्यों है अलग अलग वेस्ट?
जब हर घर में आ रहा है स्क्रैप वेंडर, कबाड़ी वाला आवाज लगाता है ना, जी। तो ठीक है, आज आपको चाहे 5 रुपए मिलते हैं चाहे 10 रुपए मिलते हैं, महीने का एक संडे लगा लीजिए, कहते 2 महीने में जब अखबार की रद्दी बेचते हैं उसके साथ ये सभी बेच दीजिए। गत्ते, पेपर, मेटल, प्लास्टिक, जो भी अपना एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, वो उसको दीजिए, ठीक है। और जो पैसा आता है उसको डोनेट कर दीजिए आप, ठीक है। और जो वेट वेस्ट है, अगर आप वेट कंपोस्टिंग यूनिट अपने घर में नहीं, वैसे तो आपकी खाद बन जाएगी उसकी, है ना, उसको कोशिश कीजिए कि खुद ही उसको यूटिलाइज कर लें खाद में। नहीं कर पा रहे तो खाली वेट वेस्ट आप जो आता है डेली हमारे यहाँ तो घर पे आ जाते हैं लेने, उनको दीजिए, वो फिर अपना कंपोस्टिंग कर लें। तो एक तो बहुत आसानी हो जाएगी इससे, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, है कि नहीं सोल्यूशन? तो हर घर कर सकता है ये काम, क्यों नहीं कर पाएगा? थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बस। पर फिर भी लाइक ये मैंने पर्सनली देखा है कि जिस एयरपोर्ट जैसे हाई मतलब बहुत ऑर्गेनाइज जगह पे भी लोग जो वेट और जो नॉन ड्राई वेस्ट है सब एक में जिसमें मन करे उसमें डाल देते हैं। पर ये तो लोग का भी है, और जो आते भी है सेपरेट जो कचरा वाले लेने आते हैं उसमें भी लोग सब एक ही में मर्ज करके डाल देते हैं। तो उसमें भी देखो एक बहुत अच्छा सिस्टम, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने उस को जो आता है ना वेस्ट पिकर, मैंने उससे बात करी। मैंने कहा भैया तुम्हारा क्या इनकम है, मैंने पहले पूछा। मैंने कहा कितना मिलता है आपको RW से इसका सैलरी जो भी है वो, तो उसने बोला पता नहीं 3-4 हज़ार कुछ बताया होगा उसने। तो उसने बोला पर मेरे 300 रुपये रोज ना मैं खुद अलग कर लेता हूँ। अच्छा, उसमें से हाँ सेग्रीगेट कर लेता हूँ। अगर लोग डाल देते हैं तो मेरे 300 से 400 रुपये 500 रुपये मेरे रोज के बन जाते हैं। मैं खुद कागज अलग कर देता हूँ और मेटल अलग कर देता हूँ, प्लास्टिक और कांच की बोतलें अलग कर देता हूँ, तो मेरे को मिल जाते हैं। तो जितनी हाई तौबा हो रही ना उतना है नहीं। अच्छा। और एयरपोर्ट की बात आपने बोली, वहाँ तो अलग अलग मैंने देखा बिन्स रखे होते हैं रहते हैं, बट लोगों का है कि वो उसमें ड्राई का वेट मेटल है, वेट का ड्राई। लोगों को अब अवेयरनेस तो चाहिए, तो फिर फाइन करो, अगर कोई देख लेता तो फाइन करे। कोई स्पिटिंग करता है, एक तो मेरे को सबसे ज्यादा गंदा लगता है ये जो गुटखा वगैरह करते हैं। इसके तभी मैंने बोला एनवायरमेंटल पुलिसिंग, जब फाइन लगेगा ना इंसान अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है ना। तो यही लोग गुटखा खाने वाले, स्मोक करने वाले जब बाहर के देशों में जाते हैं तो स्मोक करते हो स्पेशल स्मोकिंग एरियाज में, यही लोग, यस, ठीक है। और यही लोग कहीं पे भी स्पिट नहीं करते। तो व्हाई नॉट यार, थोड़ी सी एनफोर्समेंट कुछ समय के लिए चाहिए, लोगों की आदतें अपने आप सुधर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि देखिए क्राइम तो होता है, क्राइम किस लेवल का है, क्या सिर्फ आप हार्डकोर क्राइम को करेंगे? लेकिन एनवायरमेंटल क्राइम सबसे बिगेस्ट क्राइम है, मैं तो ये कहूँगी, ठीक है। तो और उसको इग्नोर करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है आज के ज़माने में जी। क्योंकि आप सिर्फ हार्डकोर किसी का मर्डर हो जाएगा तभी काम करेंगे कि आप, ये भी तो मर्डर ही है ना एक तरह से। धीरे धीरे स्लो पॉइजन आप दे रहे हैं सोसाइटी को, ये भी तो मर्डर ही है। तो आप, मैं तो कहती हूँ डाकू बने उससे पहले आप चोर को पकड़ लीजिए। इसमें ये मेरा है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ओके, ये बहुत अच्छी कहावत है। ज्यादा हो जाएगा डैमेज तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ वो तो है। सो जैसे हम आजकल नया टेक्नोलॉजी AI आ गया और ब्लॉकचेन, ये जनरेटिव AI वगैरह। सो आपके हिसाब से लाइक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे कोई टेक्नोलॉजीज में आप जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, जैसे वाटर टेस्टिंग हो गया या फिर कुछ और टेक्नोलॉजीज के बारे में आप जो पब्लिक को बताना चाहते हैं कि देखिए ये टेक्नोलॉजी आई है, तो आपके हिसाब से? नहीं, ये वाटर टेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनफैक्ट, क्योंकि हमारा रूरल एरिया अभी भी ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है ना, पीने के पानी के लिए। टैप वाटर सप्लाई हर जगह नहीं है ना। और आपको मैंने बताया कि जो ओपन ड्रेन्स हैं उससे लीचिंग होती है टू द ग्राउंड वाटर। आप यमुना को तो ट्रीट कर लेंगे, गंगा को ट्रीट कर लेंगे, ग्राउंड वाटर को कैसे ट्रीट करेंगे? और साथ में मैंने ये भी सुना था कि अभी एम्स में ही फीकल वाटर का कंटेमिनेशन हो रहा है, उनके ड्रिंकिंग वाटर वाले में ये पाया गया है। तो कैसे हम अब बहुत सारे ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेट्स जहाँ पे RO वाटर आता है,
तो कैसे हम चेक करेंगे कि जो हमारा वाटर साफ है कि नहीं, बिकॉज पानी से ही हमारा 70% ऑफ द बॉडी बना हुआ है। तो ऐसे तो वही मैंने बताया, हमने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की मदद से एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने ड्रेन्स ऑफ दिल्ली उनका एनालाइज किया था कि कितना जो है कंटामिनेशन जाता है ग्राउंड वाटर में थ्रू द ओपन ड्रेन्स, क्योंकि कंक्रीट तो है नहीं। बाकी देशों में कंक्रीट की बड़ी बड़ी पाइप्स में भी इसलिए जाया जाता है। अच्छा। और फिर वो एसटीपी प्लांट जाता है, वहाँ ट्रीट होता है वो। हाँ। ठीक है ना। यहाँ तो ओपन ड्रेन्स है, एयर तो हो ही रही है पोल्यूट, नीचे ग्राउंड वाटर भी हो रहा है, सॉइल प्रोफाइल भी हो रहा है ना। इतनी तरह की बीमारियां पनप रही हैं। तो मैंने देखा कि ग्राउंड वाटर में इवन फीकल एंड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी जा रहा है। मैं तो सोची थी शायद वो छन जाता होगा, नहीं, चैनल्स बन गई हैं, हैवी मेटल्स जा रहा है। जितने भी फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हैं, क्लोरीन, ये सब हाई परमिसिबल लिमिट से बहुत ऊपर है, अमोनिया वगैरह। तो इसके अलावा हमने एक और प्रोजेक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के साथ, जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं जब हम किसी फील्ड में करते हैं, तो फार्मर को क्या दिया जाता है कि पूरा कॉकटेल दे देते हैं। फर्स्ट राउंड ये, सेकंड राउंड ये, थर्ड राउंड ये, फोर्थ राउंड ये, कॉकटेल ये डालो आप, है ना। और बेचारा चाहता है कि भाई अच्छा मेरा क्रॉप में कीड़ा ना लग जाए, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कृषि विज्ञान केंद्र के होते हैं उनको जाना चाहिए, उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की उनको करना चाहिए, और उनकी परमिशन से ही किसी को पेस्टिसाइड डालना चाहिए। हमारे देश में ऐसे है जो खुला किसान ले ले और डाल दे। बाकी देशों में ऐसा नहीं है। रेगुलेटरी ऑफिसर्स आते हैं, वो ही बताते हैं पेस्ट की लेवल कितना है। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है तभी स्प्रे होता है और क्या स्प्रे होना है। न्यू जनरेशन पेस्टिसाइड मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर लग भी गया है कीड़ा तो पुराना ऑब्सोलीट को खत्म करें। तीसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्राथमिकता दें। और चौथी बात है कि क्या नई फॉर्मुलेशन है, जैसे कि कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन है, वो धीरे धीरे रिलीज होता है पेस्टिसाइड, और वो स्प्रे वाला खत्म कर देना चाहिए। जैसे ईसी, इमल्सिफायबल कंसंट्रेट है, वेटेबल पाउडर्स हैं, पहले ये होते थे फॉर्मुलेशंस, उनको थोड़ा ऑब्सोलीट करो। क्योंकि जब स्प्रे करते हैं तो टारगेट पे ये इतना ही डाल जाता है 1%, 99% एनवायरनमेंट में चला गया, एयर में चला गया, वो पानी में चला गया, वो सॉइल में चला गया, वो ग्राउंड वाटर में लीचल हो गया, लिटरल रन ऑफ द रिवर्स में चला गया। तो हमने पाया घग्गर, हिंडन एंड यमुना रिवर में बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स कॉकटेल ऑफ पेस्टिसाइड्स है, ऑर्गेनोक्लोरिन्स है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, जो बहुत ही हाईली परसिस्टेंट है, जो जल्दी से डिग्रेड नहीं होते हैं वो। तो और कुछ इवन पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो बैन भी हो चुके हैं, वो भी पाए गए। मे बी वो अभी भी एडल्टरेटेड फॉर्म में आ रहे हैं। और हमने देखा कॉटन में लोग ज्यादा डाल, अरे तो एडिबल प्लांट नहीं है उसमें ज्यादा डाल देते हैं। अच्छा। लेकिन गया कहाँ हुआ, एनवायरनमेंट में गया। जब हमारे यहाँ पेस्ट कंट्रोलर आते हैं तो हम कहते हैं भैया अच्छे से करना, दोबारा पेस्ट ना आ जाए। अच्छे से का क्या मतलब है, 1 ml पर लीटर स्क्वायर, 1 लीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जब है प्रेस्क्राइब डोज उतनी डालनी चाहिए ना। अगर मैं आपको बोलूँ आप 500 mg एंटीबायोटिक खाओ, यानी मेरी पूरी बीमारी ठीक हो जाए, तो आप अगर मान लेंगे 1000 mg, क्या होगा आपका बॉडी का? सारे बैक्टीरिया, टॉक्सिक, यू विल डाई। यस। ऐसे हमारा एनवायरनमेंट इज डाइंग बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। देखिए, दवाई को दवाई की तरह इस्तेमाल करें। इवन नमक भी अगर ज्यादा खा लेंगे तो इट विल बिकम टॉक्सिक। तो हम ब्लेम करते हैं दवाइयों को, हम ब्लेम करते हैं पेस्टिसाइड्स को। देखिए, आप हर चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करें, जहाँ जरूरत हो उतनी ही डोज इस्तेमाल करें, नहीं तो हमारा सारा एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस इतने सारे हर्बल पेस्टिसाइड्स आ गए हैं, जैसे कि हमने ये एक हर्बल पेस्टिसाइड बनाया है यहाँ पर अभी, जो वीड प्लांट से बनता है, जो वेस्ट प्लांट्स होते हैं उनसे बनता है। तो नीम है ना, सब कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं, उनको यूज करें। प्लस हमने एक छोटी सी ये वाटर टेस्टिंग किट बनाई है, जो बहुत ही सिंपल टाइटोमेट्रिक मेथड से स्कूल के स्टूडेंट्स भी इससे टेस्टिंग कर सकते हैं, है ना। इसमें 15 पैरामीटर एनालाइज हो सकते हैं, और इसमें ये पूरा SOP इसको दिया है कैसे इसको करना है। और मेरा जो एम है ये हर स्टूडेंट को, हर हाउसवाइफ के पास जाए और ये टीचर्स मैनुअल है जो टीचर बताएंगे इस टेस्टिंग किट को कैसे सिंपल टाइट्रोमेट्रिक मेथड से ये 15 पैरामीटर्स हम एनालाइज कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है। अगर लैब में एक सैंपल जाएगा तो उसका 12,000 रुपये कॉस्ट है, उसका सिर्फ 100 रुपीज कॉस्ट आता है। और 25 सैंपल्स आप इससे एनालाइज कर सकते हैं। बस वही, हम साइंटिस्ट हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, लोग आगे आए लेने वाले, तो
आई थिंक हमारा सब काम हो सकता है। अभी मैं एक स्टार्टअप भी लॉन्च करने का सोच रही हूँ, जो हमारे 6 पेटेंट ग्रांट हुए हैं। और मैंने एक एयर प्योरीफायर भी बनाया है, सस्टेनेबल एयर प्योरीफायर, जो कि मैं अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में आपको। तो वो भी मतलब लगता तो शो पीस की तरीके से है, लेकिन वो इंडोर एयर पोल्यूशन पूरा खींच लेता है। क्योंकि आज की डेट में इंडोर एयर भी बहुत पोल्यूटेड हो गई है। तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा सस्टेनेबल एयर प्योरीफायर बनाया है, जिसमें रिप्लेसेबल फिल्टर है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, एनर्जी भी कम लेता है। तो लोगों को इस तरीके से ना फ्रूगल इनोवेशंस जो है उनको लेने की जरूरत है। तो वो अपना जो भी पानी पीते हैं वो आराम से टेस्ट कर लेंगे उससे, है ना। और बहुत सारे सेंसर्स भी आ रहे हैं मार्केट में, जिससे पता चल जाता है कितना एयर पोल्यूशन है। बट आई थिंक अब जैसे हम गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा वो पहले तो टाट के पर्दे लगाए जाते थे, लेकिन अभी हम एक फिल्टर बना रहे हैं जो एसी की उस पे लग जाएगा, या एयर कूलर के उस पे लग जाएगा, तो अपने आप एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह की फ्रूगल और बड़ी सिंपल इनोवेशंस जो है हमारे पास वैसे है। कंटिन्यूस और पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन जो मिनट टू मिनट हमें डेटा देता है, हमारे गेट के पास एमिटी में है, उससे हमें पता चल जाता है कि कितना पोल्यूशन है। तो हम वो प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं अपने को बचाने के लिए। बाकी मैंने बता ही दिया, गाय का घी लगाइए, है ना। जी जी। सो अभी एक क्लाइमेट चेंज तो शुरू हो चुका है। हमने अभी जो इस बार ठंड भी ज़्यादा नहीं पड़ी, बरसात भी हुई और गर्मी बहुत जल्दी आएगी। जो अप्रैल में दिल्लियों में गर्मी इतनी जल्दी नहीं आती है, थोड़े अप्रैल एंड में आती है, और मार्च अप्रैल के महीने में इतना हीट होने लगा। सो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते किसी तरह से कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको यहीं इसी वक्त रोक सके, इससे आगे और एक्सट्रीम ना हो? हर साल तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सो क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं हम, चाहे दिल्ली हो चाहे केरला, जो हर साल जहाँ पे बहुत फ्लड आता है, लोगों का जान जाते हैं, तो हम ऐसे क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? देखिए, इसमें सबको साथ, एज अ गवर्नमेंट और एज अ इंडिविजुअल, आप देखो इसमें सबको साथ आने होगा। तो इसी के लिए कॉप मीटिंग्स होती हैं, और सब कार्बन क्रेडिट्स और ESG की बातें कर रहे हैं। एंड उसके बाद 2 डिग्री टेम्परेचर, तो दिल्ली में इंडिया ने भी अपना करा है कि 30% जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशन रिडक्शन करना है बाय 2030, और 0 हो जाना है बाय 2030, है ना। तो उसके लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं एट गवर्नमेंट लेवल। एफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। उसके अलावा जो डेजर्टिफिकेशन है उसको कम कर रहे हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो ना एक बॉम्ब जैसा फेंक रहे हैं डेजर्ट में। अच्छा। उसके अंदर सीड्स होते हैं, तो वो डेजर्ट पूरा उसमें प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन कर रहा है ना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो आइडिया कि दूसरा, लोग अब तो छोटे छोटे, जैसे एक गुठली को भेज रहे हैं, आम की गुठली को बो दिया, वहाँ पे पैक करके उधर भेज रहे हैं, वो उधर उसमें प्लांट बना रहे हैं। तो मैंने जो बताया कि अपने घर में कहाँ सुखाइए, टेरेस गार्डन बना लीजिए, ठीक है ना। तो प्लांट्स ही है एक सोर्स जो CO2 लेके O2 डालेंगे, ठीक है। प्लांट्स ही हैं जो प्रेसिपिटेशन करेंगे। तो अब जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने अनाउंस करा है, मनोज तिवारी जी ने हमारे, कि भाई हम इसको रिक्रिएशनल फैसिलिटी में यमुना फ्रंट को डेवलप करेंगे। दिल्ली में सब कुछ है। आई एम डेलीगेट बॉर्न एंड ब्रॉट अप। जब हम छोटे थे तो कुएं से पानी पी लेते थे, लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते थे। यमुना भी बहुत साफ थी, लेकिन मेरे को चाहिए कि थेम्स रिवर की तरह, और इवन गुजरात में भी हमारी साबरमती जो रिवर है उसको भी साफ किया गया है, ऐसी हमारी यमुना भी साफ हो जाए। और यहाँ इनके बैंक्स पे खूब पेड़ पौधे, जंगल बनाया जाए, जिससे कि पानी वापस फ्लोरा फोना सेटअप आए। और हम सब लोगों को आगे आना होगा। जैसे हमने एक कैंपेन शुरू करा, हर साल हम करते हैं कि अडॉप्ट 5 इंडोर प्लांट्स एंड गिव लंग्स टू योर होम। तो हमने एक जारी की है लिस्ट पौधों की जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं डे टाइम में भी। जैसे ये देखिए आप मेरे ऑफिस में, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। और उसमें बहुत सारे क्रिसैंथेमम है, देन स्पाइडर प्लांट है, देन मदर इन लॉज टंग, स्नेक प्लांट है, मदर इन लॉज टंग। तो इस तरीके से हमने कि अपने घर में कमरे में आप इंडोर प्लांट्स लगाइए, है ना। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग रोकेगा। फिर पब्लिक लेवल पे आप एफॉरेस्टेशन करें।
ग्रास लगाएं, और कोस्टल एरियाज की जहाँ तक बात है वहाँ पर भी मतलब लोग अपना ब्लू ग्रीन एल्गी कर सकते हैं, सीवीड ग्रो कर सकते हैं, उससे भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगी। बल्कि हमारा तो जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट एक अभी आया है, हम एल्गे से हम बायोफ्यूल जनरेट कर रहे हैं जी, पेट्रोलियम। हाँ, तो उसमें हम जो कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट वाटर भी ट्रीट हो जाए, साथ ही साथ बायोफ्यूल तो बने ही बने, वेस्ट वाटर के ऊपर हम उसको ग्रो करें। फिर एक हमारा अभी हमने नया एक स्ट्रेन बहुत नया डिस्कवर करा है जो कोल्ड क्लाइमेट में बायोफ्यूल जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लद्दाख तक इतना हमारे पाइपलाइन जाती है, तो वहीं की लेडीज कोल्डर क्लाइमेट में वो बायोफ्यूल जनरेट करें, मतलब बायो रिएक्टर लगा के उनको लाइवलीहुड भी मिलेगी, है ना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हो जाएगी। हम CCUS की बात कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कार्बन कैप्चर जब हम करते हैं तो उसके साथ कंटेमिनेंट गैसेज आ जाती हैं, सॉक्स, नॉक्स, उसको कैसे अलग करें। लेकिन देखिए प्रकृति ने कितना अच्छा में दिया है, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा प्योर है, और आप एल्गे उसके साथ साथ में बायोफिल बनाएगा, या प्रोटीन भी निकाल सकते हैं एल्गे का। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की, ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। जी, तो कैंपेन की आपने बात किया, तो कैंपेन तो पहले बहुत स्वच्छ भारत आया, फिर प्लास्टिक बैन आया। सो कैंपिंग में ऐसे कि स्टार्टिंग में जब वो होते हैं तो बहुत एवरीबडी इज मोटिवेटेड, एवरीबडी इज क्लीनिंग द रोड और सब कुछ कर रहे हैं, पर ऐसा क्या हो जाता है कि सर्टेन टाइम ऑफ आफ्टर सर्टेन मंथ्स और ईयर्स वो सब शांत हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द? हाँ, मेरे को लगता है कि हर किसी भी प्रोजेक्ट की लॉन्जिविटी के लिए और कंटिन्यूएशन के लिए कोई प्रैक्टिकल मेथड्स हो जाएंगे। अब सभी अपने काम में बिजी हैं, घाट क्लीनिंग कर ली, ठीक है, मैंने बोला ना एनफोर्समेंट, इफ यू कीप पोरिंग इन, है ना। अब आपने एक बार घाट क्लीन कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने एनवायरमेंटल पुलिसिंग नहीं करी, लोग फिर आगे गंद डाल रहे हैं। तो अगर आप ये इस तरह की उसको साथ में एनफोर्समेंट के साथ उसको शुरू करेंगे, कोई भी कैंपेन को, चाहे स्वच्छ भारत मिशन है वो, जैसे हमारा कैंपस में 0 प्लास्टिक है, तो हमने बोला है कि जितनी भी कैंटीन्स हैं उसमें पैकेजिंग मटेरियल होगा, कोई भी प्लास्टिक का नहीं होगा वो, है ना। प्लस हमारे यहाँ मिट्टी के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। फिर रूफ पे हमारे वो लगे हुए सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। फिर उसके अलावा हमारे सारे STP प्लांट्स हैं, 0 वेस्ट डिस्चार्ज है हमारा, है ना। तो पूरे कैंपस में STP प्लांट्स लगे हुए हैं। उसमें भी डिफरेंट तरीके के हैं, कुछ एनर्जी एफिशिएंट हैं, कुछ कंसोर्शिया, माइक्रोबियल कंसोर्शिया के उस पर चलते हैं, जो चारकोल में कन्वर्ट कर देता है पूरा वेस्ट को। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशंस की, और हम अपने घर पे भी, मैंने बता दिया, एक छोटा सा सिस्टम सेग्रीगेशन करें और वो करें। प्लस हम सोलर भी तो चल रहे हैं घरों में, तो सबको ही आगे आना होगा, फिर ये आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाएगा। जी, सो थैंक यू सो मच मैम। सो आज हमने we talked about pollution, waste water and innovations. All comes down to our environment is our health. So thank you so much for listening to this episode, and for helping us to record such episode. Please like, share and subscribe to Health Magazine podcast. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you.